Hello, my dear students. I, Shahin Kapasi, your mathematics teacher, welcomes you to my today's session. I hope so that you have revised the previous sessions of measuring stamp which we have done in our previous session. What we have done? We have done about squares and rectangles. We have seen the topic of dotted sheet and measuring stamps in our previous sessions of your chapter number 3, how many squares from your math magic textbook. And today we are going to discuss more about the area and perimeter in this chapter, and by solving some question answers we are going to do this today's session. So are you ready? Okay, so let's start. Read the questions with me so that your reading skills also get better with me. Okay children, let's start reading. Guess. A1 question. Which has the bigger area, one of your footprints or the page of this book? Now here one girl is standing. If you notice here, one girl is standing here and she is having one book in her hand and footprints in her hand. So we have to find that which has the bigger area. So anyone can tell me what do you mean by area? Yes, what do you mean by area? Area means the inner portion of the shape or inner portion of rectangle, of square, or any of the shape. So now here one girl is standing and she is having one book and she is having footprints in another hand. So we have to find that which has the bigger area. So looking to her, what do you notice? Is this book is big or is her this footprints is big? Which has the bigger area? This, yes, this book has the bigger area. So we can write here the answer that the page of the book has the bigger area. So what you have to write? You have to write here. I don't have lots of space, so I will write here our answer. You also write with your pencil. The page of this book has the bigger area. Has the bigger area. That means the page of this book has the bigger area. बुक का पेज जो है वो बिग है, बड़ा है उसका एरिया. Then coming to our next question, B1, let's read. Which has the smaller area? Two 5 rupee notes together or 100 rupee notes? I am reading question again for you. You also read with me again this question because you have to first understand this question and then we have to move to our answer part. That what is given, which has the smaller area, two 5 rupee notes together or 100 rupee note. Now here what does this A means? I told you in further only that A means 1. That means 100 rupee note is there and 5 rupee notes is there. So if you will notice here, one girl is standing here and she is also having 100 rupee note and she is having 5 rupee notes together as given in your question. This 5 rupee notes together is here and or 100 rupee note is here. Now this girl is standing and she is having in one hand she is having 100 rupee note and in other hand she is having 5 rupee notes together. Now we have to see that which one has the smaller area. What we have to find? We have to find the smaller area. किसका एरिया स्मॉल है वो हमको फाइंड करना है. सो लुकिंग टू दिस, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर 5 रुपीज़ की दो नोट है, नॉट अ कॉइन, दिस इज़ 5 रुपी नोट एंड दिस इज़ 5 रुपी नोट. ये 5 रुपी नोट है और यहाँ पर मैं 100 रुपी की नोट रख रही हूँ, ठीक है. सो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंड से मी कि दो 5 रुपीज़ की नोट जो हमने रखी है
उसका एरिया जो है वो स्मॉल है कि 100 रुपी नोट का एरिया स्मॉल है, कौन सा छोटा लग रहा है? ऑब्वियसली 100 रुपी का नोट जो है वो छोटा लग रहा है, क्योंकि दो 5 रुपी की नोट जब आप उसको साथ में रखोगे, यू कैन डू दिस एट होम ऑल्सो, यू कैन ट्राई दिस एट होम ऑल्सो। दो 5 रुपीज़ की नोट को आप साथ में रखना और उसके नीचे आप कौन सी नोट रखोगे? 100 रुपी की नोट को रखोगे। यू हैव टू कंपेयर दैट कि अगर दो 5 रुपी की नोट जो है उसका एरिया स्मॉल है कि 100 रुपी नोट का एरिया स्मॉल है, वो आपको देखना है। तो कौन सी रुपी का नोट का एरिया स्मॉल होगा? येस, ऑब्वियसली 100 रुपी नोट का एरिया क्या होगा? स्मॉल होगा। सो वी विल राइट अवर आंसर हियर इज दैट ए 100 रुपी नोट, what we will write, a 100 rupee note has the smaller area। और अगर इसके आगे आपको डीप में लिखना है, सो यू कैन राइट दैट ए 100 रुपी नोट हैज़ द स्मॉलर एरिया देन टू 5 रुपी नोट्स। ओके, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट योर आंसर। नाउ मूविंग टू अवर C1 क्वेश्चन, look at the 10 rupee note. Is it area more than 100 square centimeter? Now here what is given, that what we have to look one 10 rupee note। अगर आपके पास घर में 10 रुपी का नोट है तो आप लोग उसको देख सकते हो। what we have to see in that कि is its area more than 100 square centimeter। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है उसका एरिया 10 रुपी नोट का? नहीं, बिकॉज 10 रुपी का नोट कितना होगा? बहुत बहुत तो इतना होगा। ठीक है, तो वो क्या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर करेगा? नो, उसका एरिया तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। सो दिस क्वेश्चन विच इज़ गिवन इज रॉन्ग। सो वी कैन राइट हियर दैट नो, I am writing here C1 answer because I am not having so much space. That's why I am writing here our answer. Answer number C, that is no, the area of 10 rupee note is less than 100 square centimeter। हम लोग क्या आंसर लिखेंगे हम लोगों का? डेट नो द एरिया ऑफ 10 रुपी नोट इज लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 10 रुपी नोट का एरिया क्या होगा? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होगा। सो अवर आंसर विल बी नो, द एरिया ऑफ 10 रुपी नोट इज लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, now moving to our D1 question, is the area of blue shape more than the area of yellow shape and why? Now here, if we have any confusion now, then what we do? We got very much confused in that situation and we stand and we only think about it, that whether this question is right or wrong, whether I am asking this question is right or wrong, we get confused more and more. So that only is this girl is doing. She is very much confused about the area of blue shape and the area of yellow shape. Let's help her in this solving this question. That is the area of blue shape more than the area of yellow shape. Let's help this girl to identify that area of blue shape is more than the area of yellow shape and why. So if we will see this figure, blue shape area, if you will see here this blue shape area, this much is a blue shape area, and what is saying, that is the area of blue shape more than the area of yellow shape? Is this more than the area of yellow shape? blue shape जो है येलो शेप से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, या येलो शेप ज़्यादा है कि ब्लू शेप ज़्यादा है, वो हमको देखना है। सो इफ़ यू विल सी दिस एरिया पार्ट, अंदर का पोर्शन अगर हम लोग देखें ऑफ स्क्वायर एंड ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल, सॉरी, तो आप लोग क्या देख रहे हो? इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि जो आपको जो स्क्वायर दिया है बड़ा सा, उसका एरिया, और वो स्क्वायर के अंदर क्या है? उसके अंदर भी जो है ट्राइंगल है। देखो ये स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्क्वायर क्या है? बीच में से ऐसे कट किया हुआ है। सो ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल। और ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल। और यू कैन से दैट, अगर मैंने इसको समझा कि ये बिग रेक्टेंगल है, अगर हम इसको एक रेक्टेंगल की तरीके ले लें, अगर ये रेक्टेंगल बना दे और ये ऐसे बीच में से हम लोगों ने इसको लाइन कर दिया, सो ये क्या बन गया?
ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, ये कुछ इस तरह से ये जो है डिवाइड हो गया। वैसे ही अगर ये वाला फिगर आप नोटिस करो तो एक बड़ा सा ट्राइंगल है और उसको भी क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मैं आपको अगर बताऊँ तो ये कुछ ऐसा है और ये भी कुछ ऐसा है। सो लुक एट दिस फिगर एंड दिस फिगर, दोनों का एरिया क्या लग रहा है आपको, सेम लग रहा है, क्योंकि क्या है, दोनों इक्वल पार्ट्स के ट्राइंगल ही दिख रहे हैं। So we can write here answer that no, because the area of blue shape is equal to the area of yellow shape. हाँ, अगर बाहर की बात होती, पेरीमीटर की बाउंड्री की बात होती, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये बाउंड्री का पार्ट जो है, बाहर का पार्ट जो है वो क्या है, अलग है। सो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारा आंसर क्या है, इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप। तो एरिया की बात हो रही है, अगर पेरीमीटर की बात होती तो हमारा आंसर कुछ अलग आता। मगर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ऑफ एरिया। एरिया का मतलब क्या है, अंदर का पोर्शन। और अगर आप इसको टेढ़ा करके फिगर को देखोगे तो दोनों का एरिया क्या है, सेम है। सो वी विल राइट हियर वाई। वाई मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका रीज़न भी बताना है कि वाई दिस शेप आर सेम और नॉट। जो भी आपका आंसर है वो आपको रीज़न के साथ बताना है। सो वी विल राइट हियर वेरी ब्यूटीफुली कि हमारा आंसर हम प्रेजेंट करेंगे दैट नो। क्यों नो हमारा आंसर है, बिकॉज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल। क्या है, दोनों के एरिया इक्वल है। तो नो, द बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द येलो शेप। दोनों के एरिया क्या है, सेम है। सो वी विल राइट हियर दैट नो, बिकॉज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल टू द एरिया ऑफ येलो शेप। और यू कैन राइट हियर दैट द एरिया ऑफ द बोथ शेप्स आर इक्वल। Now let's move to our even question. What is given? Is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of blue shape and why? Now here just recently I have told you, अगर हम लोगों को पेरीमीटर के बारे में पूछा होता तो हम लोगों का आंसर क्या होता, डिफरेंट। बिकॉज एरिया की बात हुई थी तो क्या थे, दोनों के इनर पोर्शन क्या थे, सेम थे। सो वी हैव रिटन इन अवर D1 आंसर दैट नो द एरिया ऑफ बोथ द शेप्स आर सेम। बट नाउ हियर किसके बारे में बात हो रही है, नाउ हियर इट इज़ फॉर पेरीमीटर। अब बात हो रही है पेरीमीटर की। तो मैंने बताया आपको कि अगर पेरीमीटर किसको बोला जाता है, आउटर बाउंड्री पार्ट को बोला जाता है। डिड यू रिमेंबर दिस? ओके, तो पेरीमीटर किसको बोला जाता है, आउटर बाउंड्री पार्ट को बोला जाता है। सो लुकिंग टू दिस फिगर्स व्हाट यू आइडेंटिफाई, क्या लग रहा है आप लोगों को, ये जो बाहर का आउटर पार्ट देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों, ये जो पूरा दोनों फिगर है वो दोनों क्या सेम है, पेरीमीटर दोनों के जो है वो सेम है? नहीं। इज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप? नो, that this answer is also wrong. So what will be our answer? That no, because the boundary of yellow shape is clearly लेस देन दैट ऑफ ब्लू शेप। क्योंकि बाउंड्री येलो शेप की जो है वो क्या है, कम है किससे, ब्लू शेप की बाउंड्री से। यानी ये ब्लू शेप वाला फिगर जो है वो क्या है, कुछ थोड़ा सा उसका पेरीमीटर क्या है, बड़ा है, और येलो शेप का पेरीमीटर क्या है, कम है। सो व्हाट वी विल राइट हियर दैट नो, because the perimeter of yellow shape, or you can write the boundary of yellow shape, perimeter of yellow shape is less than that of blue shape। ऐसे भी आप लिख सकते हो, नो बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज लेस। और इसके अलावा आप लिख सकते हो कि डेट नो बिकॉज द बाउंड्री ऑफ द येलो शेप इज क्लियरली लेस देन दैट ऑफ द ब्लू शेप। लाइक दिस ऑल्सो यू कैन गिव योर रीजन, बिकॉज इट इज गिवन विथ वाई। दिस क्वेश्चन इज गिवन विथ वाई। तो आपको रीजन बताना है कि क्यों ये पेरीमीटर ऑफ येलो शेप मोर है कि नहीं पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप से। तो हम लोग ने लिखा नो बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप is clearly less than that of blue shape. So hope that you have understand this exercise very carefully. Please do revise this exercise at home for 2 times. Now moving to our next exercise, and this is our activity part which we have to do at home. How big is my hand? Now here
कितना अपना हाथ बड़ा है. हाउ यू विल कम टू नो दैट? ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट. यू हैव टू टेक वन स्क्वायर शीट इन नेक्स्ट पेज एंड यू हैव टू ट्रेस योर हैंड. मेहंदी लगाते तो कैसे आप हाथ की डिज़ाइन बनाते हो, वैसे आपको करना है. एंड हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड. आपको एक फ्रेंड के साथ बैठना है, वो भी आपकी तरह सेम वैसे ही करेगा. एक स्क्वायर शीट के पेपर में क्या करेगा, हैंड ड्रॉ करेगा. दोनों को आपको देखना है कि आपका फ्रेंड का हाथ और आपका हाथ में से किसका हाथ बिगर है. Then you have to find the area of your hand and you have to write. Then next question is you have to find your area of your friend's hand and then you have to measure and write the answer here. This is an activity part, and here also you have to do this activity part, that my footprints. You have to now here my one girl is saying that my footprint is longer, another is saying my footprint is wider. So whose foot is bigger, that you have to identify. And my footprint mean whose footprint is larger, yours or yours friend. You have to identify and write there. And how will you decide, discuss, and you have to do this with the help of this sheet given here. And you have to find that is the area of both the footprints are same or not, that you have to write your answer here. This is an activity part which you have to do in your homework. And here are some animals, that my skin has many folds, so I have a big area. This way the air all over me keeps me cool. Now here baby rhino is saying this all things. Now here elephant is saying that what is the area of my footprint. And here some another animals like crow is saying that what is the area of my footprint. Now here some animals are given, and guess which animal's footprint will have the same area or yours. Discuss. We have to discuss this here, that which one has the area, किसका एरिया जो है वो सेम है. एनिमल्स का एरिया सेम है कि हमारा एरिया सेम है, दैट वी हैव टू डिस्कस. Then here are some footprints of animals in actual sizes. Guess the area of their footprints. यहाँ पर आपको कुछ साइज दी हुई है एनिमल्स की footprints की, और आपको क्या करना है, गेस करना है. सी यह हैंड की footprint बताई हुई है आपको पिक्चर में यहाँ पर. कैन यू सी दिस? तो क्या करना है आपको, यहाँ से आपको लेके गैस करना है कि इसका एरिया कितना होगा. सो यू हैव टू फाइंड द एरिया फॉर दिस. फिर आपको यहाँ पर जो है डॉग की फुटप्रिंट बताई है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डॉग की फुटप्रिंट देख के उसका एरिया फाइंड करना है. एंड हाउ टू फाइंड एरिया, नाउ ओनली वी हैव डिस्कस. कैसे हम करेंगे, बॉक्सेस काउंट करके हम एरिया फाइंड करते. सो दिस ऑल आर द एक्टिविटीज़ पार्ट विच यू हैव टू डू इन योर होमवर्क, एंड so that your area part may be clear with you. This activity part you have to do in your homework part, so that your area topic will be more clear to you. Okay, now moving to our next topic, that is how many squares in me. So let's start this topic. How many squares in me? Now here one girl is there and she is saying that what is the area of this triangle. Now this triangle means what is the area of this triangle. So if you will notice this figure, here is one रेक्टेंगल विथ 2 इक्वल स्क्वायर्स. 2 स्क्वायर बने हुए हैं ये छोटे छोटे ऐसे कुछ टाइप के, और क्या बन गया, ये एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया जब इनको जोड़ा गया तो. और फिर क्या हो गया, यहाँ से बीच से कट किया गया, डैट मीन्स एक क्या बन गया बीच में, ट्राइंगल. यानी कि 2 ट्राइंगल बन गए कुछ इस तरीके से, ये ऐसे और ये कुछ ऐसे. और यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, कट है. डैट मीन्स जो 2 अलग अलग बॉक्स थे वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए. So here what is the area of this triangle, this girl is asking. Now another girl is saying, जो उसके सामने खड़ी है वो क्या बता रही है कि the triangle is half of the rectangle of area 2 square centimeter. अब ये जो सामने वाली जो लड़की है वो क्या बता रही है कि ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है is half the rectangle of 2 square centimeter. So let's see कि ये लड़की ने जो अभी बताया है कि 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो ये रेक्टेंगल है वो क्या है, उसमें जो ट्राइंगल बना हुआ है वो रेक्टेंगल का हाफ है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट, सो इट्स एरिया इज 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमको क्या फाइंड करना है, हमको उसका एरिया फाइंड करना है. किसका एरिया फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन. ये जो लड़की बता रही है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो एरिया है वो करेक्ट है कि नहीं. लेट्स सी फर्स्ट. यहाँ पर क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है. द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल. अब भाई उसने बता दिया कि जो ट्राइंगल जो बना हुआ है वो किस में बना हुआ है, ये एक बड़े रेक्टेंगल में बना हुआ है. एज यू कैन सी कि ये रेक्टेंगल के अंदर ही ये जो है ट्राइंगल बना हुआ है. ओके
और क्या बोला है कि ये रेक्टेंगल का मेजरमेंट क्या है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इफ़ यू विल सी दैट 1 2 2 बॉक्सेस है तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है ऑलरेडी. और बोला है कि यू हैव टू फाइंड सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. हम लोगों को एरिया फाइंड करना है. किसका एरिया फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया फॉर दिस ट्राइंगल. सो जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में बताया है कि ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ द रेक्टेंगल. ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि ट्राइंगल क्या है, रेक्टेंगल का हाफ है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम है. हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एक्चुअली हम लोगों को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. मुझे बताओ आप कैसे फाइंड करोगे? आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो रेक्टेंगल है उसी के अंदर जो है ये ट्राइंगल है. तो रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आप लोगों के पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी दिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको क्या बोला है कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है? रेक्टेंगल का हाफ है. तो मुझे बताओ अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है सो व्हाट वी विल डू? रेक्टेंगल डिवाइड बाय 2. डैट मीन्स रेक्टेंगल का कितना मेजरमेंट है? 2 डिवाइड बाय 2. सो 2 1s are 2, 2 1s are 2. सो व्हाट वी विल गेट? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. हम लोगों का आंसर क्या आएगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट हियर दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ पर हम लोग को क्या लिख देना है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट. नाउ हियर another girl is saying that is this shape half of the big rectangle. अब ये लड़की क्या बता रही है कि ये जो शेप है वो बिग रेक्टेंगल का हाफ है कि नहीं. कौन सा शेप? ये वाले शेप की बात हो रही है कि ये जो शेप आपको दिया है और उसके अंदर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है. तो ये जो शेप था रेक्टेंगल का उसके अंदर जब ये शेप बना तो ये शेप जब बना तो ये जो भी शेप बना है वो रेक्टेंगल का हाफ हो गया. सो इट इज़ राइट दैट वी कैन राइट हियर दैट यस, जब भी कोई शेप के अंदर दूसरा शेप एंटर हो जाता है तो वो शेप उसका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. सो वी कैन राइट हियर दैट यस दिस शेप इज हाफ ऑफ द rectangle. Yes, this shape is the half of the big rectangle. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर. देन नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ हियर अनदर गर्ल इज आस्किंग कि आपने बताया कि अगर कोई एक बिग रेक्टेंगल है, कोई भी एक शेप है, उसके अंदर दूसरा शेप अगर आ जाता है तो वो शेप उसका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. और हमने आंसर भी उसका येस लिखा कि यस दिस शेप इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. सो नाउ हियर इज अनदर गर्ल इज आस्किंग दैट कि आप बता रहे हो कि इसका हाफ हो जाता है. सो लेट्स सी फॉर द एरिया. एरिया अगर कितना है वो कैसे पता करेंगे? सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका एरिया हम कैसे पता करेंगे? किसका एरिया? जो डिज़ाइन अंदर बनी हुई है शेप के अंदर, इसका एरिया हमको क्या करना है? फाइंड करना है. सो हाउ वी विल फाइंड? लेट्स सी. कैसे फाइंड करोगे आप? 2 मेथड्स है. जैसे हमने स्टेम्प्स में मेजर किया था वैसे ही आपको इसमें भी मेजर करना है. 1 2 3 4 कितने हैं टोटल? 4. यहाँ पर कितने हो गए? 2. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाट वी विल गेट? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो टोटल बिग रेक्टेंगल का एरिया कितना मिला हम लोगों को? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. और अनदर मेथड इज दैट एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो इफ यू विल फाइंड दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड breadth is equals to 2 square centimeter. So 4 2s are 8. That means 8 square centimeter. और दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया था स्टेम्प्स में 1 2 3 4 5 6 7 8. देन ऑल्सो वी विल गेट 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. बट ये 8 स्क्वायर सेंटीमीटर किसका हम लोगों को आंसर मिला? एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल. हम लोगों ने किसका फाइंड आउट किया? एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल का हम लोगों ने फाइंड किया. अभी हम लोगों को किसका फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड फॉर दिस पार्ट, दिस पोर्शन हम वी हैव टू फाइंड. इसका एरिया हमको फाइंड करना है. तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो जैसे हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपको एक रेक्टेंगल दिया था जिसके अंदर एक ट्राइंगल था. मतलब रेक्टेंगल के अंदर जब ट्राइंगल बना तो वो रेक्टेंगल क्या हो गया? ट्राइंगल जब बना तो वो ट्राइंगल क्या हो गया? हाफ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है? एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक शेप बना हुआ है. तो जब वो शेप रेक्टेंगल के अंदर एंटर किया तो रेक्टेंगल क्या हो गया? डिवाइड हो गया 2 पार्ट में. तो जो हम लोगों को अगर शेप का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ दिस शेप इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल डिवाइड बाय 2. रेक्टेंगल का हम लोगों को एरिया पता है, अभी हम लोगों ने फाइंड किया. कितना फाइंड किया? 8
डिवाइड बाई 2. सो 2 के टेबल में 8 कभी आता है आप लोगों का, 2 4 ज़ा 8. सो वी राइट हियर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. दैट मीन्स इसका एरिया कितना मिला हम लोगों को, ये वाले पोर्शन का 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो वी विल राइट हियर that we got the answer for this shape is area of this shape is equals to 4 square centimeter. Or you can write that so half of the area of big rectangle is equals to 8 square centimeter divided by 2, that means is equals to 4 square centimeter. So its area is 4 square centimeter. So we will write our final answer here that so its area is 4 square centimeter. And if we will count here you will get also 4 square centimeter. देखो यहाँ पर अगर आप उसको एरिया देखोगे आप इसका तो आपको 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ही मिलेगा. ये यहाँ पर एक ऐसा पकड़ो, एक यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये ऐसे 4, मिल गया आपको 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. पोर्शन को कवर करके देखोगे आप तो आपको 4 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा. ओके, सो होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक of today's session. What we have discussed today, we have discussed about the area, the topic of area. In that we have seen about the footprints, we have seen the page of the book, we have compared that both the things, and we have seen that the page of the book or footprints is bigger, page of the book is bigger area, having the bigger area. And then we have seen about the 2 5 rupee notes together, and we have seen 100 rupee note. That also you have to try at home. आपको क्या करना है, 2 5 रुपीज़ की नोट को साथ में रखना है, 100 रुपीज़ की नोट को साथ में रखना है. आपको कंपेयर करके देखना है कि स्मॉलर एरिया किसका है. Then we have seen the 10 rupee note is having 100 square centimeter, more than 100 square centimeter. No, because 10 rupee note का क्या है, एरिया जो है वो लेस होता है, कम होता है 100 square centimeter का. Then we have compared some shapes of triangle and rectangle you can say. और हम लोगों ने देखा कि दोनों शेप में क्या है जो है एरिया और पेरीमीटर के बारे में जाना. हम लोगों ने देखा कि जब उन दोनों का पेरीमीटर की बात आई तो क्या हुआ, जो है उन लोगों के जो है पेरीमीटर ऑफ येलो शेप क्या था, लेस था पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप से. और जब हम लोगों ने एरिया की बात की तो दोनों शेप्स क्या थे, इक्वल थे. दोनों के एरिया क्या थे, सेम थे. अंदर का पोर्शन जो दोनों का क्या था, सेम था. फिर हम लोगों ने देखा हम हाउ बिग इज़ माई हैंड. फिर हम लोगों ने देखा कि आपको एक एक्टिविटी पार्ट आज होमवर्क में करनी है. For what you have to do, you have to compare your hands with your friend's hands, and you have to trace your hands, and you have to find out the area of your hand on your friend's hands also. Then we have seen some animals footprints. हम लोगों ने एनिमल्स के फुटप्रिंट्स देखे. उसमें भी आपको क्या करना है, आपको उसमें से बॉक्सेस काउंट करके आपको उसके भी एरिया निकालने हैं. कुछ अलग अलग एनिमल्स आपको दिए थे जैसे बेबी राइनो, हैंड, डॉग, एलिफेंट, वैसे. तो आपको क्या करना है, सबके फुटप्रिंट्स देखने हैं, किसके एरिया जो है ज़्यादा है, किसका एरिया कम है. देन वी हैव सीन द एक्सरसाइज ऑफ हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी. इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं. और जब एक शेप के अंदर दूसरा शेप जब बन जाता है तो वो शेप उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. जैसे यहाँ पर जो है वन गर्ल ने क्या किया था, एक रेक्टेंगल बताया था और उसने बताया कि जब वो शेप के अंदर क्या आ गया, ट्राइंगल आ गया, तो वो ट्राइंगल आ गया तो वो क्या हो गया, रेक्टेंगल का हाफ हो गया ट्राइंगल. और उसका एरिया लेके हम लोगों ने जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाला. देन फिर अदर हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बड़ा वाला देखा, उसके अंदर कुछ अलग टाइप का शेप बना हुआ था, तो फिर हम लोगों ने उसका भी जो है क्या है, एरिया फाइंड आउट करना सीखा. सो इन टुडेज सेशन in overall what we have studied about to find area. Now here also write the area in square centimeter of the shapes below. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सारों के एरिया फाइंड करने हैं और आपको क्या करना है, उनके सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आपको उसके आंसर्स लिखने हैं. Now this triangles topic we will study in our next session, so be ready for this topic टू स्टडी इन अवर नेक्स्ट सेशन. जब तक का आपको क्या करना है, आज का जिस सेशन में जितना भी पढ़ाया गया है डेट यू हैव टू रिवाइज ट्वाइस एट होम टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. ओके, सो थैंक यू, स्टे सेफ.